Hello and good morning students. Today our topic for discussion will be national development. Also we will be looking how we can compare different or how the countries are compared on the basis of various parameters for taking on development or for studying development. Okay, so the topic goes like this. In a previous video you all have studied that development is not equal for anyone. Okay, development can be for one person but it can be not development for some other person. Okay, so development depends on the situation, it depends various from individual to individual. Okay, so it's not a generalized rule over here that whatever is development for one person that will be development for some other person also. Okay, so today we will be studying what is national development and we will also be studying the comparison of different countries. Okay, so what is this? At individual basis, notions of development are different. This we all know. We all have studied in our previous video that at individual basis, notions of development are very different. किसी के लिए development का पैरामीटर कुछ होता है, किसी के लिए development का parameter is some other thing. Okay, so development is not same or there is no generalized rule for development. Then how development of nation is calculated or measured and how can the countries be compared then? Now I have put a question over here that as we all know that there are different notions of development at individual basis. ठीक है, जैसे for example for a student the basis for development will be what? He getting to a good school, getting good books, development उसके लिए वही होगा. For a farmer development will be getting good price of crops. Okay, for a labor the development will be getting good wages, good working hours. Okay, so how development of nation is calculated or measured? But when we talk about a nation or a state, how development is calculated over here, so here is some different issue. So that is why I have put this as a question before you all, that how can the countries be compared then, because we all know that the parameters of development are different to different. तो जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तब तो वो अलग अलग है, बट अब जब हम किसी देश की या किसी नेशन की बात करते हैं तो वो पैरामीटर्स क्या होंगे, डेवलपमेंट कैसा माना जाएगा, किस देश को हम डेवलप कहेंगे. सो फॉर कंपेयरिंग ऑफ कंट्रीज देयर आर वेरियस नोशंस और एट्रीब्यूट्स. जब हम देशों को कंपैरिजन करते हैं, जब हम देशों के डेवलपमेंट की बात करते हैं, देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नोशन. नोशंस मीन्स पैरामीटर्स और एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तब हम अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं. ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्राइटेरियाज अपॉन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिसाइड व्हाट या किसी देश का डेवलपमेंट कितना है. ओके, बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट और नोशन इज इनकम. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो नोशन माना जाता है, जिसको हम डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, इट इज इनकम. इनकम किसकी? इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, उस देश की पर्टिकुलर इनकम. लेकिन ये इनकम कैसी होगी? हाउ इज दिस इनकम? तो कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम. You all know that there are various countries जहाँ पर इनकम बहुत अच्छी है लोगों की, जहाँ पर लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज़ में आज के टाइम हम किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे. ऑल दीज कंट्रीज आर व्हाट? ऑल दीज कंट्रीज आर हायर इनकम कंट्रीज. तो ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की इनकम अच्छी है तो उसकी बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी और होनी भी चाहिए. दैट इज़ करेक्ट अप टू एन एक्सटेंट. तो इनकम अच्छी है तो बाकी चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं. बट क्या सिर्फ यही एक रीज़न है? क्या सिर्फ इनकम ही एक पैरामीटर है बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द डेवलपमेंट? तो ऐसा भी नहीं है. अभी आप आगे पढ़ोगे कि सिर्फ इनकम ही वो चीज़ नहीं है जिससे हम किसी जगह की डेवलपमेंट को डिसाइड कर सकें कि वहाँ पर कितना डेवलपमेंट है, वो डेवलप्ड है कि नहीं है, या वो अंडर डेवलप्ड है, या वो डेवलपिंग देश है. ओके, सो ओनली इनकम इज़ नॉट पैरामीटर, यस, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर. ये इम्पॉर्टेंट है. तो हम इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि इनकम तो एक क्राइटेरिया हो गया डेवलपमेंट डिसाइड करने के लिए. अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? या इनकम
कैसे निकालेंगे? तो व्हाट इज दैट? तो कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। ओके, बिकॉज मनी इज द बेसिस फॉर मैनी अदर थिंग्स। यू ऑल नो कि मनी ही बहुत सारी चीज़ों को डिपेंड करता है, डिसाइड करता है, अच्छा करता है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो चीज़ों को बना सकता है, लेकिन सिर्फ मनी ही होना या इनकम ही होना सारी चीज़ों को डिसाइड भी नहीं करता है। सिर्फ यही रीज़न नहीं है सारी चीज़ें अच्छी होने का। ओके, सो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है, बट सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है ये नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है बट सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है ये बात नहीं होती है कभी। ठीक है, तो देर आर वेरियस अदर पैरामीटर्स दैट वी विल बी स्टडिंग नाउ। गोइंग ऑन फर्दर, देयरफॉर इनकम ऑफ अ कंट्री डिसाइड्स इट्स डेवलपमेंट एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। ओके, तो फिलहाल के लिए तो यही है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, सिर्फ अकेला का पैरामीटर नहीं है बट ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इसलिए इनकम डेफिनेटली डिसाइड्स दैट डेवलपमेंट एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। ये एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। बट फॉर कंपैरिजन टोटल इनकम इज नॉट सच मेजर। अब वी हैव टॉक्ड अबाउट इनकम ऑफ अ कंट्री, तो किसी देश की इनकम कैसे? टोटल इनकम यानी कि सारे इंडिविजुअल जितने भी हैं देश में रहने वाले, ऑल द इंडिविजुअल्स और ऑल द सिटीजन्स ऑफ कंट्री, should we add up the salaries, should we add up the income of all the individuals और all the families, all the members of that, कि हम सबको जोड़ लें तब हम इनकम निकालें उस देश की, या इनकम निकालने का क्या तरीका होना चाहिए? सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इनकम कैसे निकालेंगे? तो इनकम हमने मान लिया इनकम एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है डेवलपमेंट के लिए, तो इनकम कैसे निकालना चाहिए या सही तरीका क्या होगा इनकम को कैलकुलेट करने का? सो सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, यू ऑल नो दैट हर देश की अपनी अलग अलग पॉपुलेशन है, देयर इज डिफरेंट पॉपुलेशन, तो क्या वी कैन कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम कंट्री इंडिया विद any other country? For example, Sweden. Can we compare Denmark with India? Can we compare Pakistan with India? You all know that there is a lot of difference of population. Can you compare China with Pakistan? तो we cannot compare this, क्योंकि हर देश का डेवलपमेंट अलग है। चाइना के लिए डेवलपमेंट अलग होगा, उसकी पॉपुलेशन अलग है। अगर हम वहाँ के सारे इंडिविजुअल्स की सैलरीज या उनकी इनकम्स को ऐड कर देंगे तब तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान को एक्सीड कर जाएगा। तो ये क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इनकम तो मान लिया हमने, बट इनकम की वो चीज़ लो जो सब में बराबर हो। वो क्या है? उसको कहते हैं एवरेज इनकम, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज इनकम। तो हैंस फॉर कंपैरिजन वी विल कैलकुलेट एवरेज इनकम। हम एवरेज इनकम निकालेंगे, हम इनकम को जोड़ेंगे नहीं, बट हम एक एवरेज इनकम निकाल लेंगे एक देश की। ओके, हाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज इनकम? तो एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हमें एक पर्सन की या एक एवरेज इनकम आ जाएगी। ओके, हमें एक एवरेज इनकम मिल जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि कितनी एवरेज इनकम है किसी देश की। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन फर्दर। फॉर एग्जांपल, कंट्रीज विद मोर देन 12,736 यूएस डॉलर्स पर एनम इन अ ईयर। पर एनम मीन्स हर साल, पर एनम इन अ ईयर। अगर एक कंट्री है जहां पर 12,736 यूएस डॉलर इज इनकम ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज रिच कंट्री। ये 2013 के पैरामीटर्स के बेसिस पे ये कैलकुलेशन किया गया है। इस समय ये और ज़्यादा होगा। ओके, तो यू ऑल कैन सर्च इट फ्रॉम इंटरनेट ऑल्सो, एंड व्हेन वी विल बी गोइंग ऑन आवर लाइव क्लासेस देन डेफिनेटली आई विल टेल दिस, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट डाटा। सो ये बुक में पुराना डाटा दिया हुआ है 2013 का, तो उसके बेसिस पे 12,736 यूएस डॉलर अगर किसी देश का एवरेज इनकम होता था तो उसको हम रिच की कैटेगरी में रखते थे, एंड दोज विद 1045 यूएस डॉलर और लेस वर कंसिडर्ड टू बी एज लो इनकम कंट्रीज। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, व्हाट एट व्हाट कैटेगरी इट कम्स? तो इंडिया कम्स इन अ लो मिडिल इनकम कंट्रीज कैटेगरी, लो मिडिल इनकम कंट्रीज कैटेगरी। ओके, so what have you studied in this overall this topic? So you have studied that नेशनल डेवलपमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट को निकालने के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर माना जाता है उस कंट्री की इनकम को।
लेकिन इनकम भी कैसी, तो इनकम भी सबकी इनकम को ऐड अप नहीं किया जाता है, इनकम को एक एवरेज इनकम बनाया जाता है। एवरेज इनकम जब हम निकाल लेते हैं देन ओनली यू कैन कंपेयर अ पर्टिकुलर कंट्री विद सम अदर कंट्री, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें, तो अगर हम सबकी इनकम ऐड अप करने जाएंगे तो वो कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। तो कंपैरिजन अगर सही से करना है, इफ़ यू हैव टू कंपेयर टू कंट्रीज on a good parameter, then definitely you have to calculate an average income so that the comparison is justiciable. Okay, so this is the formula for that, calculating average income. Now in our next video you will be studying that only income is not that criteria. income important ज़रूर होती है, income पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है, लेकिन सिर्फ income ही चीज़ नहीं है कंपैरिजन करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बताएंगी, ठीक है। सो दिस वी विल बी स्टडिंग in our next video. Okay, thank you.